Good morning, ma'am. Good morning, Sachin. Good morning, ma'am. Good morning, Kavyansh. How are you all doing? Ma'am, good. Good. I think yesterday we Yes, completed sir. geography. No, ma'am. Then Ma'am, we were doing after petroleum. I forgot the topic. Gas one. natural gas. Yes, ma'am. No, ma'am. मैम वो हमने कंप्लीट कर चुके थे नेचुरल गैस, उसके बाद वाला टॉपिक स्टार्ट करना। अच्छा, नेचुरल गैस हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके मैम बाद वाला टॉपिक। उसका बाद वाला। अच्छा, नेचुरल गैस के बाद वाला। लेट मी शेयर द स्क्रीन। Ma'am, we were doing conservation of energy resources. ओके, लास्ट पैराग्राफ वाज लेफ्ट। Yes, ma'am. तो आप बताओ, एक जनरल डिस्कशन को ले लेते हैं इसको। व्हाई वी शुड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, सॉरी। मैम फॉर फ्यूचर यूज। व्हाट एल्स? Yes, tell Sachin. Ma'am, for our future. Okay. What else? ये तो हमें पता है भाई, फ्यूचर यूज के लिए है। उसके अलावा क्या कारण हो सकता है? Ma'am, it takes very much time to get renewed. Good morning, ma'am. Yes, because it gets a lot of time. It takes a lot of time in renewing itself. Very good. Good morning, Ishika beta. Yes, they told me, those who have joined now, they told me that yesterday we were on the topic conservation of power, sorry, energy resources. Now I am asking you, it is a very general topic, right? You do it. For a disaster. हाँ, okay. Beta Aryan, if you could please open your camera, Aryan. Am I audible to you? Yes, ma'am. My camera's option is not showing up. It's not showing. Why? Yes, ma'am. I can send screenshot also, ma'am.
Ma'am, it's not there. It's not connected. You are Angad's friend Aryan, right? No, ma'am. I'm Then Raj, Aryan Raj. you are Aryan Raj. Okay. So what Yes, is ma'am. this written in front of your name? I am not able to get the language. What is it written? Can you tell? Ma'am, one second, ma'am. I'm changing it, ma'am. It's auto correction, ma'am. Wait, ma'am. I'm joining again after deleting this name. No, it's okay. It hardly makes any difference. I'm just asking you that what you have written. Just tell us because we are not acquainted with this language, no? Ma'am, it's my name written in another language. In which language it is written? Ma'am, Japanese. Japanese. Okay. Okay. Good. Let it be. No issues. Let it be. It's not creating any problem for the class. Is it creating, children? No, ma'am. No, ma'am. Fine. Okay. So Aryan, we will start with you only. Tell me why we need to conserve energy resources. Give me genuine points. Don't give me those points ki it is for the future, it is for that. Give me certain points which you really feel that for these reasons it should be conserved. We all know for future need, of course, for the future generation, we need these energy resources. But other than that, what could be the probable reasons for the conservation of these resources? They can be used like in any emergency time, like ma'am, when all the resources have run out and we have still stored some resources, then we can use them at that time. ठीक है. When all the resources have run out, in that case, we can use those conserved resources, right? Okay. What else? Why to wait for the running out of these resources? Why can't we have, parallel usages of the energy resources that are conventional, that are non-conventional, which are renewable, right? Yes, Isn't ma'am. it? Yes, ma'am. We can go for that also. Zainab? Yes, ma'am. What do you feel? Same energy. We should save energy because for the future, for our next generation. Okay. See, for the can you clarify it, Zainab? Yes, ma'am. Ma'am, means if now we can save, then we can, our next generation can use these resources, and if we finish them, they will not able to get that. Acha, what if we keep them in store? Then what are we going to use? How we are going to lead our lives without these resources? Ma'am, we can only use them by only need. We should not waste electricity. We should not use gas so much, or so much. Okay. I will we tell should not use. one incident I will tell you. One of my friend, her father was in ONGC, oil and natural gas. You know this, right? Yes, ma'am. He was working in that, and he was posted in Srinagar. So she told me one fine day, like when her father got transferred to Jammu from Srinagar, they used to be in Srinagar for 6 months during the summer season, and for next 6 months during the winters they used to shift to Jammu. Jammu was comparatively a bit warm than Srinagar in winters, right, in comparison to Srinagar. So when she shifted there and when she took admission in our school, we happened to be very good friends. So one fine day I asked her, like I was just asking her that what do you feel, what are the drawbacks of this place, what are the plus point of being in Srinagar. So she told me, Shashi, my mother, she never used to switch off, she never used to put off the knob of the gas stove. I said, why? She must be wasting so much of gas. She said, because we had a regular supply of we have these pipelines, no? Nowadays we are being given gas through pipelines, CUGL, yes. Right? Yes, ma'am. Right. So she told me that many of the families over there, they never used to switch off the knobs. Reason being that they would waste unnecessarily. They would be wasting on matchsticks and other what do you call resources, other sources which were required for lighting the knob.
lighting the gas. I was so surprised by this. I asked her, तो तुम्हारी मम्मी ने तो बहुत सारा गैस वेस्ट करा होगा इसका मतलब? तो बोली नहीं, वो मम्मा सिंपल कर देती थी जब वो यूज में नहीं होता था. तो मैंने कहा बट डोंट यू थिंक दैट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस? बोली हाँ हमें पता है. बोली हम लोग जाके ऑफ कर देते थे तो फिर हमें डांट भी पिटती थी कि मैंने ऑन करा था, किसने ऑफ कर दिया, ये बार बार मैच स्टिक कौन वेस्ट करेगा, बार बार लाइटर कौन खरीद के लाएगा. तो आई वाज लाइक देन आई आस्क्ड हर कि बाकी लोग भी ऐसा करते थे? तो शी सेड हाँ. तो आप ये सोचो कि इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, दीज आर नॉट गुड. इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, जो हमारे पास जो हमको एक रिसोर्स मिला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज, उसका हम अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं एंड वी आर वेस्टिंग इट, इजंट इट? यस मैम. राइट. तो ये Yes, चीज ma'am. वाज अ शॉक फॉर मी कि कोई चीज जो आपको इतनी इजीली अवेलेबल है आप उसको इस तरीके से वेस्ट कैसे कर सकते हो. एंड ये ह्यूमन टेंडेंसी है. हमारे पास जो भी रिसोर्सेज आज की डेट में अवेलेबल हैं, वी डोंट हैव दैट इम्पोर्टेंस टू इट, क्योंकि हमें पता है वो हमें इजीली अवेलेबल हो गया है. अगर इन्हीं चीजों के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता तो शायद हम इनकी इंपॉर्टेंस को समझते. जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हेल्थ इज सच अ बिग कंसर्न. ये लोगों को तब समझ में आया जब कोविड आया. क्या कोविड से पहले आपकी हेल्थ के प्रति कोई आपका कंसर्न नहीं था? नहीं मैम. नहीं था ना. पीपल नेवर बॉदर्ड अबाउट हेल्थ, राइट. तो जब भी किसी चीज का क्राइसिस होता है, इंसान को तभी समझ में आता है कि उसकी क्या वैल्यू है. अगर हम वो क्राइसिस ही ना आने दें, अगर हम उस स्टेज को ही ना पहुंचे, तो कितना अच्छा होगा कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, बोथ ऑफ देम आर इन अ कैपेसिटी टू यूज इट, राइट. जिन लोगों Yes, के ma'am. एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल कि बहुत जनरल सा एग्जाम्पल है ये, मतलब ये बहुत पुराना ऑब्सलीट सा भी हो गया है, बट ये हमेशा जो है हम इसका रेफरेंस देते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक वाटर इज अ रिसोर्स जो कि हमें फ्री मिलता है नेचर से, पर सब जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी इजी नहीं है. आप उन लोगों से पूछो कि वाटर की क्या वैल्यू है जहाँ पे पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को कितना कितना दूर जाना पड़ता है. मतलब राजस्थान हुआ आपका, महाराष्ट्र में भी देयर आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे लोगों को 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वो वहां से तब जाके बड़ी मुश्किल से दे आर इन अ कंडीशन टू फेच वाटर. मतलब 2 बकेट लेके आ जाएंगे या 2 मटके लेके आ जाएंगे या 2 बड़े कंटेनर्स में लेके आ जाएंगे, बट वो ट्रैवल डिस्टेंस तो उनको उतना ही ट्रैवल करना है, तो ज्यादा वो कैरी कर नहीं पाते हैं. तो वहां का जो लाइफस्टाइल है वो उन लोगों की नजर में पानी की बहुत वैल्यू है. वेरेज अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे बच्चे बहुत लीस्ट बॉदर्ड है. हम अपने आसपास भी देखते हैं, हम स्कूल में भी देखते हैं कि अगर टैप्स रनिंग कंडीशन में है तो नोबडी इज बॉदर्ड. बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं फ्रॉम दैट एरिया वेयर द टैप्स आर पुट, दे डोंट इवन बॉदर टू गो एंड स्टेप अहेड देयर एंड टर्न इट ऑफ. सो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जो दो ये बहुत ऑब्सलीट हो गए हैं ये एग्जाम्पल्स, बट अगर आप देखो ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं हर चीज में. मतलब हमने ऐसे से एग्जाम्पल्स देख के रखे हुए हैं जहाँ पे इंसान जो है पानी के लिए इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो कोई भी कॉस्ट पे करने को तैयार है, और जब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, तो हम उसकी कितनी बर्बादी कर रहे हैं. देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे पानी को इस तरह से वेस्ट करने पे फाइन इज इम्पोज्ड. तो ये प्रोविजन अगर गवर्नमेंट करती है कि भाई हम ऐसे तो अपने आप में तो वी आर नॉट वेरी मच अवेयर, है ना, बट व्हेन गवर्नमेंट मेक्स इट अ प्रैक्टिस, व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेस फाइन्स और टैक्सेस ऑन सर्टेन थिंग्स, तब हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं. तो गवर्नमेंट को ये स्टेप क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट रियलाइजेस कि लोगों को अपने आप में किसी चीज की वैल्यू नहीं है unless and until they are asked for extra money for the same thing that is given to people free of cost. तो तब इंसान को समझ में आता है भाई yes these things have value. Am I right or not? Yes, ma'am. Everyone over there, Aryan, Niharika? Yes, ma'am. Right? तो क्यों ना हम जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को हम इतने अच्छे से यूज करें कि एक तो हम उनको लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकें, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन जो है यूज कर सकें, प्लस वी आर ऑल्सो सेविंग देम फॉर द फ्यूचर यूजेस. ठीक है, केवल आज का सोच के हमें काम नहीं करना है, हमें आज और कल दोनों को सोच के काम करना है. हमें ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी कहीं नहीं जो है लैंड करना है वेयर वी आर इन अ फिक्स. जब ये फिक्सिंग वाली पोजीशन आ जाती है तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है.
क्योंकि वो फिक्स वाली सिचुएशन ऐसी होती है वेर यू कैन नॉट लुक बैक ऑल्सो, और आप आगे भी नहीं बढ़ पाते हो चीजों को देख के। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि भाई देखो हमारी इंडस्ट्री इन एनर्जी रिसोर्सेज पे बेस्ड है, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज पे बेस्ड है। अगर हम इनको अच्छे से जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये डेवलपमेंट और ये ग्रोथ जो है ये एक टाइम पे जाके एक जगह पे जाके स्टेगनेंट हो जाएगा, ये रुक जाएगा, वो भी इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ठीक है, तो हमें एज part of the country, as a duty, what we need to do, we need to think of alternate resources. हमें जो easily available alternate resources हैं उन पे हमें काम करना चाहिए, उनको हमें यूज करना चाहिए, उनको ज्यादा डेवलप करना चाहिए। और ये जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, इनको हमें इतना जुडिशियस यूज करना चाहिए कि हमारे पास वो नौबत ना आए, हमारे पास वो कंडीशन, वो सिचुएशन ना आए जब हम फिक्स में हो गए और हमारे पास फर्दर रिसोर्सेज ही नहीं है टू गेट देम। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, सबसे बड़ी बात कि भाई ये एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं ट्रेडिशनल, उनको अगर हम यूज कर लेते हैं तो हमारे पास फ्यूचर नीड के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमें ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के बारे में सोचना है जो हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका सन हुआ, आपका वाटर हुआ, आपका विंड हुआ, आपके टाइड्स हुए, जियोथर्मल, इन एनर्जीज को हमें फर्दर डेवलप करना है सो दैट वी कैन हैव पैरेलल एनर्जीज रिसोर्सेज रनिंग, राइट? राइट, आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। चलिए, do we really need to read need to read this, or you will do it on your own? Shall we start with the question answers? Yes class? मैम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलो। Can we have do I need to share the book with you people, or you have the books with you? Class? Ma'am, we have. Fine. So the first question is, well, let me share the screen because I won't be able to do it, no? Hello. Can you see the screen? Yes, ma'am. Maths answer. Chalo, can we have Niharika reading the first question? Niharika, if you have the book with you. Yes, ma'am. बेटा ये बताओ, हमने मैप्स के बारे में आपको बता दिया है इस चैप्टर के? क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have I told you about the map work? Yes, ma'am. सारे जितने मैप्स थे, कोल माइंस के, कोल फील्ड के, आयरन ओर के। मैम एक बार फिर से बेटा इशिका? Yes, ma'am. बेटा हमने कल आप लोगों से मैप्स के बारे में कुछ शेयर करा था। No, ma'am. इस चैप्टर के लिए मैप्स हमने Yes, आपको बता दिए थे सारे। Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Mahin, can you tell me the places which I gave you for the nuclear power plants and thermal power plants?
Yes, ma'am. Tell. Ma'am, may I post on the group, ma'am, that screenshot? Yes, post it on the group. Let me also see. Okay, ma'am. Ma'am, Yes. Yes, beta. ma'am, your screen is stuck on this PC. On page 50. Let me share it again. No, PC. Yes. Yes, beta. Now it is showing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See this map on page 59. We have to do this in copy. I am telling you. Wait. I am circling. I am encircling the places which you need to mark in the map. One is this Namrup. Then you have Talcher. Then you have Neyveli, Kalpakkam. You have Kega. You have Tarapur. You have Kakrapara. I hope you can see these encircled lines. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then you have Singrauli and Narora. How many places are these? 9 places? 9. 9. All these 9 you need to do in the India political map. Okay, ma'am. Shall I change? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Fine. Now coming to next part. Coming to the coal mines, page number 57. Opened? Yes, ma'am. There are oil fields and coal mines that you need to underline. Fine. Again, I am encircling them. Fine. You have, see, oil fields, Bombay High, Basayan, then Neyveli, then you have Nahar Katia, you have Digboi, then you have Raniganj, you have Bokaro, then you have
Ankleshwar, Kalol. You have Ankleshwar. Then you have Babrela, I think also you have. Let me just check. Just a second now. How many places I have encircled? Can you tell? Ma'am, 9. 9. Okay. Digboi, Naharkatia, Mumbai High, Basayan, Kalol, Ankleshwar. Then Mayurbhanj I forgot. Wait. Mayurbhanj is not given over here. Sorry. Raniganj, Bokaro, Talcher, Naiveli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 places are there. Ma'am, 9. 9 are there. Yes, ma'am. Which one is left? रानीगंज, बोकारो, तलचर, नेवेली. नहीं बेटा, पूरी हो गई शायद. 4 और 4 8 9. मैम 9 है. बेटा ये तलचर रह गया, देखो तलचर. 10 हो गई पूरी. Yes, ma'am. You can take the screenshot. Fine, taken. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. चलिए अब आप आ जाओ नेक्स्ट वाले मैप पे. नेक्स्ट मैप है आपका ऑन पेज नंबर 54. चलिए इसमें आप करोगे आयरन ओर माइंस. क्या करोगे आप? Iron. हाँ, आयरन ओर माइंस में आप करोगे. वेट, मयूरभांज, ठीक है. देन यू हैव बैलाडिला, then you have Durg, then you have Bileri, you have Kudermukh, how many marked? Ma'am 5. 5. Ma'am, These 6. 5. Ma'am, 5. These 5 places you need to mark for iron ores in India, right? Done? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. So this is the Ma'am, map. please wait. हाँ, waiting beta. Yes. ठीक है. These maps are for chapter 5 mineral and energy resources, right? Now coming to the agriculture chapter. उसके लिए हमें दोबारा दूसरा चैप्टर खोलना पड़ेगा. ये जो आपका एग्रीकल्चर चैप्टर है, इस पे आ जाओ. ये आपका वीट वाला राइस है.
राइस है? कैन यू Yes, सी ma'am. क्लास? कैन यू सी? Yes. Yes, इसमें ma'am. आप मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज कोई 4 स्टेट आप मार्क कर लीजिए. मेजर 4 स्टेट्स, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ठीक है, डन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन कमिंग टू द नेक्स्ट मैप. इसमें आप कर लो 4 लार्जेस्ट या मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ठीक है, राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद आप आ जाओ ये जो मैप वर्क है, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो, इसमें आप अदर देन व्हीट और राइस क्या शो करोगे? शैल आई राइट इट ओवर हियर? स्टॉप शेयर. हम व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, उसे शेयर करते हैं. व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है? चलिए, टेक्स्ट. I am writing the names of the crops here. You can copy it down. Sugarcane, tea, coffee, rubber, sugarcane, tea, coffee, rubber, jute, cotton. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6 crops for which you need to mark largest, producing, sorry, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट. मतलब ये जो क्रॉप्स हैं, इनको वो स्टेट आप मार्क करोगे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ शुगर केन, ऑफ टी, ऑफ कॉफी, ऑफ रबर, जूट, कॉटन. एम आई क्लियर? Yes, Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर चैप्टर का. ठीक है, अब आप आ जाओ जो आपका वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है, चैप्टर 3 क्लास. Yes, ma'am. जो इस चैप्टर में आपको वाटर रिसोर्स चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर 3 है, वाटर रिसोर्स, इसमें मैप, ये चैप्टर आपको नहीं आएगा पर इसका मैप वर्क आएगा बेटा. ठीक है, ये इसका मैप वर्क ये रहा. इसमें इसको अगर हम एनलार्ज करते हैं तो आप देखो, ये सलल प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको? yes, ma'am. इसमें आपको सलल प्रोजेक्ट मार्क करना है. ठीक है, फिर आपको टिहरी प्रोजेक्ट करना है मार्क, फिर आपको भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट मार्क करना है. You have to go for Hirakund. Then you have to go for Sardar Sarovar, Rana Pratap Sagar. ठीक, कितने हो गए? 6 हो गए. और इसके बाद आपके 2 हैं साउथ में, ये आपने कर लिया?
Yes, ma'am. ठीक है, इसको अनडू कर दे। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ। नीचे आपका ये तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, हीराकुंड को दोबारा मार्क कर दिया हमने, सरदार सरोवर को दोबारा मार्क कर दिया, राणा प्रताप को दोबारा मार्क कर दिया। ठीक है, इतने आपको करने हैं। इन टोटल कितने हो गए जानते हैं? मैम 8। मैम 8। तो इस चैप्टर में से केवल मैप आएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन और फॉर लोकेशन। तो ये मैप आप इतने जरूर याद से कर लीजिएगा इन योर नोटबुक्स। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Any other thing that you need to ask? नो मैम। पक्का ना? Yes, ma'am. मैम ये सब पॉलिटिकल पे करने हैं। बेटा पॉलिटिकल पे कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपको स्टेट भी पता चल जाएगी, है ना? मैम ठीक है, चलिए। Yes, अब ma'am. एक चीज और ध्यान रखेंगे। ये जो हमने मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर करा है, इसके जितने भी प्लेसेस हमने मार्क करे हैं, उनके स्टेट्स आप ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करोगे बेटा। डू आई नीड टू टेल यू द स्टेट्स आल्सो और यू विल मार्क ऑन योर ओन? मैम वो तो खुद कर लेंगे। खुद से कर लेंगे ना बच्चे? यस मैम। चलो ठीक है। तो आज हमने जो काम करा है, आज हमने एक्सक्लूसिवली मैप वर्क करा है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास दैट वी हैव टुमारो, क्या ये कल की क्लास में दिखा दोगे आप सारे मैप्स हमको? Yes, ma'am. यस ऑल ऑफ यू दोज हु आर देयर? मैम। Yes, ma'am. आज तो सबसे लीस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, ऐसा क्यों? रिटर्न वर्क कंप्लीट कर रहे हैं क्या? हाँ Yes, ma'am. मैम मैम रूटीन वर्क भी करना Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. बेटा रिटर्न वर्क अब क्यों करना है, जब आपको शुरू से कहा गया काम कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया बच्चे, हैं? क्यों? आज क्या डेट है? 23 है ना? यस मैम। मैम सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हाँ, एक तो आर्यन राज है हमारी क्लास में इस समय, ठीक है। दूसरा कौन है? इशिका वर्मा, देन वी हैव काव्यांश, देन वी हैव माहीन, ठीक है। देन वी हैव निहारिका, ठीक है। वी हैव सचिन, बस, और एक जैनिब है, ठीक है। 7 और 8वें पार्टिसिपेंट हमें, हमारी भी प्रेजेंट हमने लगा दी है, ठीक है। चलिए, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क Yes, ma'am. क्लास? No, ma'am. ऑल डाउट्स आर क्लियर? एनी प्रॉब्लम? उनका सिलेबस क्या है? सिलेबस ये है बेटा कि जो भी आपने करा है वो सब पढ़ लीजिए, बाकी तो मिल जाएगा। एक ही चैप्टर पढ़ लीजिए, सिर्फ इसके 2 चैप्टर्स आएंगे, पहले दूसरा, ठीक है। History, ma'am, history का भी बना? वाहिगुरु। हाँ, History? हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी चैप्टर 1, civics chapter 1 and 2, economics sir will tell you. I think first chapter only he has given. I am not sure, you may ask him, right? यस मैम। ठीक है, चलिए और बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हो आप चीजों को समझने में क्लास? No, ma'am. पक्का? पक्का? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, दो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूं हर चीज, बट वो ये है कि सबका अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। कुछ लोग फिजिकल क्लासेस में बैठ के ज्यादा बेटर समझ पाते हैं, है ना?
कुछ लोग घर में रह कर अच्छे से कर पाते हैं। फाइन। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम आज तो मैं मैम न्यूज पढ़ रहा था ना मैम, तो इंडिया टुडे न्यूज में हम दिखा रहे थे कि स्कूल्स खुल रहे हैं सारे। कब खुल रहे हैं? ऐसा नहीं था। मैम आर्टिकल देखा था मैम, उसमें लिखा यूपी स्कूल कॉलेज ओपनिंग सून, योगी गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन दिस डेट। हाँ वो तो खुल रहे हैं बट नॉट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। यस मैम। हाँ बच्चों के लिए भी नहीं खुलेंगे बेटा, बच्चों के लिए तो आप निश्चिंत हो जाइए। क्या स्कूल कब खुलेगा? जब खुलता है तो तुम आहीन आती ही नहीं है स्कूल में। जुलाई माही अगस्त। मैम मैं पूरे महीने आई थी। कहाँ आई थी तुम? मैम से थोड़े दिन छुट्टी करी थी। थोड़े दिन छुट्टी करी थी इसलिए कोरोना हो गया।